तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट टीसीवीआर। तो इस टीसीवीआर में ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टीसीवीआर बेस्ड ऑन टैप चेंजिंग। तो यहाँ पर आपके पास ये वेरियस वोल्ट, आपके पास एक नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर है जिस ट्रांसफार्मर में टैप्स हैं एंड दीज टैप्स आर कनेक्टेड टू वेरियस वोल्टेज कंट्रोलर्स। सो यहाँ पर आपके पास है थायरिस्टर कंट्रोल्ड एसी टू एसी वोल्टेज कंट्रोल, एसी टू एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हो एंड दिस वोल्टेज विल बी इन फेज विद द लाइन। इससे हमें क्या होता है, एक लो कॉस्ट कंट्रोलर मिलता है जिससे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर बिटवीन टू एसी सिस्टम। सो हियर दिस इज अ टीसीवीआर बेस्ड ऑन टैप चेंजिंग। तो अभी तक हमने जो कंट्रोलर्स पढ़े हैं, these are our facts controllers. So we have to study the various attributes. So the first facts controller that we studied was SSSC without storage. So your SSSC without storage, what are its attributes? You can have current control, voltage stability, dynamic and transient stability, power oscillation damping, it can also limit your short circuit currents. We also call this fault current limiting. So these are the attributes of a SSSC without storage. We also have a SSSC but with the option of storage. So it also provides all these functions. So here also you have current control, voltage stability, dynamic and transient stability. Power oscillation damping. The third one is TCSC or TSSC. So this will also provide you current control, power oscillation damping, transient and dynamic state stability, voltage stability, and fault current limiting. So once again, you will have current control, voltage stability, dynamic and transient stability, power oscillation damping, and it will also limit short circuit current.
नेक्स्ट जो कंट्रोल हमने पढ़ा दैट वाज TCSR एंड TSSC. Sorry, this is TSSR. तो इसके क्या आपके एट्रीब्यूट्स होंगे? दिस विल प्रोवाइड यू करंट कंट्रोल, पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग, transient and dynamic stability, voltage stability. अभी तक जो आपके ऊपर से हम देख रहे हैं जो भी सीरीज कंट्रोलर्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो कि ये भी सीरीज कंट्रोलर्स हैं तो सेम ही सारे या आ रहे हैं. तो जब आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा तो आप एक याद रख लो, SSSC विदाउट स्टोरेज, यानी इसमें भी करंट कंट्रोल है, वोल्टेज स्टेबिलिटी है, डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग है. यही सारी चीजें TCSC TSSC में भी है और यही सारी चीजें आपके TCSR और TSSR में भी है. तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको जो पहला वाला है SSSC वो सब याद रखना है. जो आपका विद स्टोरेज है, बस विद स्टोरेज में एक पॉइंट आपका नहीं आ रहा है, दैट इज योर फॉल्ट करंट लिमिटिंग. बाकी जो आपकी जितनी भी सीरीज कंट्रोलर्स हैं एक याद रखो, बाकी सब आपको खुद ही याद हो जाएंगे. लास्ट वन इज फॉल्ट करंट लिमिटिंग. तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं या एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. तो ये एट्रीब्यूट्स आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट इज योर SVC. What are the attributes for compensation, voltage control, voltage stability, dynamic and transient stability, and power oscillation damping. अब हम आ चुके हैं सीरीज से आपके शंट कंट्रोलर्स की तरफ. Then you have STATCOM without storage. तो जो कुछ भी SVC के आपके एट्रीब्यूट्स हैं सेम विल बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ STATCOM. Seventh one will be STATCOM but with storage. So ये भी ये सब चीजें करेगा and additionally can provide your real power for some cycles. Next is your TCBR. So we use this for, it can help in power oscillation damping, and dynamic and transient stability. Interline power flow controller. अब हम आ चुके हैं towards your combined series controller. So इनके attributes क्या हैं?
reactive power control, power oscillation damping, dynamic and transient stability, voltage control, and voltage stability. Then you have UPFC. इसमें आपको सारी एडवांटेजेस मिल जाएंगी. You will have real and reactive power control, voltage control, voltage stability, power oscillation damping, dynamic and transient stability, and fault current limiting. TCPST, you can have power control because you can change phase angle, and we know that power depends upon your phase. So you can have power control, voltage stability, power oscillation damping, dynamic and transient stability. Then you have TCVR. So using TCVR, you can have a reactive power control, voltage control, voltage stability, power oscillation damping, dynamic and transient stability. तो हर फैक्ट्स डिवाइस जो है ये एक से इसके आप इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते, एक से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते. तो ये जो टेबल हमने बनाया, इस टेबल से जैसे अगर आपको आप बोलें आपको कोई काम चाहिए, आपको कुछ कंपनसेशन करनी, तो आप देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सी कंपनसेशन रहेगी. जैसे इफ यू वांट रिएक्टिव पावर कंट्रोल, आपकी रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर कंट्रोल, वोल्टेज स्टेबिलिटी, पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग, डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, सो यू कैन गो फॉर टीसीवीआर. वैसे ही अगर आपकी रिक्वायरमेंट है VAR compensation, voltage control, voltage stability, dynamic and transient stability, power oscillation damping, and additionally आपका जो controller that should provide real power for some cycles. So उस time पे you can go for STATCOM. Similarly, if if you want current control, voltage stability, dynamic and transient stability, power oscillation damping, and also you want to limit short circuit current, so go for SSSC. तो अभी तक हमने जो भी ये टाइप ऑफ कंट्रोलर्स पढ़ लिए, इनके बेनिफिट्स पढ़ लिए. तो हम जनरलाइज करके बोलें तो व्हाट आर योर बेनिफिट्स फ्रॉम फैक्ट्स टेक्नोलॉजी. तो अभी तक जो हमने ये बेनिफिट्स देखे, तो हमने क्या क्या बेनिफिट देखे. सबसे पहला जो बेनिफिट था दैट वाज पावर फ्लो कंट्रोल. फैक्ट्स टेक्नोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट मिलता है. पहला बेनिफिट है वी कैन हैव कंट्रोल ओवर पावर फ्लो. सेकंड जो आपका
दूसरा बेनिफिट है वी कैन रिड्यूस रिएक्टिव पावर फ्लो। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप रिएक्टिव पावर फ्लो को रिड्यूस करोगे, यू विल अलाउ मोर real power to flow on a line. So if you're able to reduce reactive power flow, so then what you can do is you can allow for more real power to flow on the line. The third advantage जो है आपकी, the third benefit of using your FACS technology is you can increase the loading capacity of the line. ये हमने पहली क्लास के एग्जांपल्स में किए थे। हमारे पास कुछ लाइंस थी, कुछ लाइंस ओवरलोडेड थी, कुछ लाइंस अंडरलोडेड। तो हमने देखा था बाय वेरिंग द इम्पिडेंस हम क्या कर रहे थे, एक लाइन की लोडिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, जो लाइन आपकी अंडरलोडेड थी उसको हम उस पर हम लोड बढ़ा सकते थे, जो लाइन ओवरलोडेड थी उसके लोड को हम कम कर सकते थे। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ transmission line up to their thermal limits. अब ये भी कर सकते, एक लाइन है उस पर कुछ पावर फ्लो पॉसिबल है, तो अगर आप इम्पिडेंस कम कर देते तो हमने देखा कि आप ज्यादा से ज्यादा पावर उस लाइन के थ्रू फ्लो करवा सकते हो। तो बट आप अब आप इनफाइनाइट पावर तो फ्लो नहीं कर पाओगे, जो लाइन के थर्मल लिमिट्स होंगे उतना आप लाइन को लोड कर सकते हो। तो यूजिंग दीज FACS devices you can increase the loading capacity of the transmission line up to the thermal limits. You can provide voltage support at the buses. जहां पर आपको वोल्टेज सपोर्ट की जरूरत है, सो यू कैन यूजिंग दीज डिवाइसेस यू कैन प्रोवाइड दैट वोल्टेज सपोर्ट। आप सिस्टम की सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर सकते हो, सो यू कैन इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। बाय इम्प्रूविंग ट्रांजिट स्टेबिलिटी, आप ट्रांजिट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हो। ट्रांजिट स्टेबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ योर सिस्टम टू स्टे स्टेबल इन केस ऑफ, अगर आपके पास एक फॉल्ट है जो परसिस्टेंट है, तो अगर आपका सिस्टम तब भी स्टेबल रहता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट स्टेबिलिटी। तो आपकी सिस्टम सिक्योरिटी को आपके FACS डिवाइसेस बढ़ाते हैं बाय इम्प्रूविंग द ट्रांजिट स्टेबिलिटी। यू कैन लिमिट short circuit currents, and you can also damp electromechanical oscillations in a power system. And the last point, you can provide secure tie line connection to the neighboring system, or you can say the neighboring regions or utilities. तो ये हैं कुछ आपकी बेनिफिट्स फ्रॉम
फैक्स टेक्नोलॉजीज हमने पहली क्लास में देखे थे, कुछ जो आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी विद द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जब आप फैक्स टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो दिस कंट्रोलर्स दे प्रोवाइड यू पावर फ्लो कंट्रोल, दे रिड्यूस रिएक्टिव पावर फ्लो, जिसकी वजह से ज्यादा रियल पावर फ्लो हो पाता है ऑन लाइन। आप लोडिंग कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन की इंक्रीज कर सकते हो, वोल्टेज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो एट बसेस जहां पर आपको लगता है वोल्टेज कम है, आप उस वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हो। सिस्टम सिक्योरिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर कोई फॉल्ट हो रही है जिसकी वजह से आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो आपके पैक्स डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी को बाय इम्प्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, शॉर्ट सर्किट करंट्स को लिमिट करते हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेशंस को ये डैम्प करते हैं पावर सिस्टम में। और अगर आपको एक टाई लाइन कनेक्शन देना है बिटवीन नेबरिंग रीजन्स और यूटिलिटीज, तो यूजिंग दीज फैक्ट डिवाइसेस आप ये टाई लाइन कनेक्शन दे सकते हो। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी समथिंग more on the lines of power over a long transmission line.